گورنر کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے دانیال سید سے۔ دانیال سید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ان کی صحت کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، بالکل اب سے کچھ دیر قبل گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں کرونا وائرس جو ہے اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا مزید اپنے ٹویٹ میں یہ کہنا تھا کہ میں اس تمام تر صورتحال سے پریشان نہیں ہوں، اس وقت بھی صوبے کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ 14 روز کے لیے کوارنٹائن میں گیا ہوں، لیکن تمام تر جو سرگرمیاں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے جاری رہیں گی۔ وہ اپنے گھر میں ہی محدود ہو گئے ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل، جبکہ چند دنوں قبل جو گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل، انہوں نے حیدرآباد کا ایک شاہی دورہ بھی کیا تھا، جس میں انہوں نے تمام تر اس کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو نہیں اپنایا تھا۔ کئی ان کے ارد گرد لوگوں کو بھی دیکھا۔ دانیال سید، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبے بھر میں ٹیکسٹائل اور ٹینری سمیت مزید 153 فیکٹریز کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، سندھ حکومت نے معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے۔ صوبے بھر میں ٹیکسٹائل اور ٹینری سمیت مزید 153 فیکٹریز کو کام کی اجازت دے دی گئی ہے۔ فردوس عاشق اوان کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ 24 نیوز نے اصل کہانی معلوم کر لی۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور فردوس عاشق اوان میں تلخ کلامی ہوئی۔ اعظم خان نے فردوس عاشق اوان پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ سابق مشیر اطلاعات نے ان خبروں کی تردید کر دی ہے۔ فردوس عاشق اوان کو کیوں فارغ کیا گیا؟ 24 نیوز نے اصل کہانی معلوم کر لی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور فردوس عاشق اوان کے درمیان ایک ملاقات میں تلخ کلامی ہوئی۔ اعظم خان نے فردوس عاشق اوان پر چارج شیٹ پیش کی اور کرپشن کے الزامات لگائے۔ ذرائع کے مطابق فردوس عاشق اوان نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور جواب میں کہا کہ ان کے خلاف غلط خبریں اعظم خان کے دفتر سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے معاون خصوصی لگایا ہے اور وہ عمران خان کو ہی جواب دیں، نہ کہ ان کے اسٹاف کو۔ فردوس عاشق اوان نے 22 اپریل کو وزیر اعظم سے ملاقات میں شکوہ کیا کہ انہیں ہٹانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ اگر ایسا فیصلہ کیا تو وہ بتا دیں گے۔ دوسری جانب فردوس عاشق اوان نے تمام خبروں کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ ٹیم کے کس کھلاڑی کو کون سی فیلڈ پوزیشن پر کھلانا ہے۔ حکومت کے 18ویں ترمیم میں نظر ثانی کے فیصلے پر بلاول بھٹو ان ایکشن۔ سیاسی رہنماؤں سے رابطوں کا آغاز کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ جمہوری قوتیں 18ویں آئینی ترمیم پر کسی صورت کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی۔ تفصیلات کے لیے آزاد اونڈیو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ نے 18ویں ترمیم میں نظر ثانی کا اعلان کر کے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے آستینیں چڑھا لیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی سیاسی جماعتوں کے بڑوں سے رابطے شروع کر دیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق ہو گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جمہوری قوتیں 18ویں آئینی ترمیم پر کسی صورت کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی۔ ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دستور کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا۔ ترمیم سے چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک کرونا وائرس کی وجہ سے سنگین حالات سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کو مشورہ دیا کہ وفاق آئین سے چھیڑ چھاڑ کی بجائے صوبوں کی مدد کرے۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز کراچی۔ بھارتی فوج کی ایل او سی پر خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے کھوئی رٹا اور جند روڈ سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی ہے، جس سے 36 سالہ خاتون شہید جبکہ 8 سالہ بچی زخمی ہو گئی ہے۔ بھارت جارحیت سے باز نہ آیا، ایک بار پھر بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کی شہری آبادی کو نشانہ بنا ڈالا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی بلا اشتعال فائرنگ سے گاؤں موہر چھتر کی ایک خاتون شہید اور 8 سالہ بچی زخمی ہو گئی۔ عمر پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کیا کہ مودی کو اقتدار ملنے سے ہندوتوا دہشت گردی انتہا پر پہنچ گئی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا بھارتی ٹریک ریکارڈ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ کورونا کی آفت بھی سویلین آبادی کو نشانہ بنانے سے بھارت کو نہیں روک سکی۔ بھارتی فوج نے 2019 میں سب سے زیادہ 3301
251 मरतबा जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की, जिससे 52 अफराद शहीद और 261 जख्मी हुए। 2015 में भारत ने जंग बंदी के 248 मरतबा खिलाफ वर्जियाँ की। भारतीय फायरिंग से 39 शहरी शहीद और 152 जख्मी हुए। 2016 में 382 मरतबा खिलाफ वर्जी में 46 सिविलियन जान से गए और 150 जख्मी हुए। 2017 में 1881 मरतबा दुश्मन ने अपनी असलियत दिखाई। 2017 में बिलाश्तार फायरिंग से 53 अफराद शहीद और 256 जख्मी हुए। 2018 में LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां 3038 तक पहुंच गईं। 2018 में जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की भारतीय रवश 58 जानें ले गई। DGI ISPR ने कहा है कि जुल्म, बर्बरियत, नस्ली इम्तियाज और नफरत की मकबूजा कश्मीर में लगाई भारतीय आग अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। दुनिया कोरोना के खिलाफ मुतहद हो रही है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान हिंदुत्व और सिफरान दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। लॉकडाउन के बावजूद रमजानुल मुबारक की रौनकें बरकरार हैं। कराची में सहरी के औकात में बाजार बंद हैं, लेकिन रात गए खवातीन सहरी की तैयारियों में मसरूफ हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे समीन नवाज से। समीन नवाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए दस्तरखान इफ्तार की तरह से सहरी के लिए भी खुसूसी एहतमाम घरों में किया जा रहा होता है और चूँकि पूरे साल में एक मरतबा ये महीना आता है तो जहाँ पर खुशू खुजू से इबादत का सिलसिला जारी होता है, वहीं पर दस्तरखान की रौनकें बढ़ाने के लिए भी हमें घर में ख़वातीन सुबह शाम मसरूफ़ अमल नज़र आती हैं। इस वक्त हम बावर्ची खाने में मौजूद हैं और मेरे साथ खातून खाना मौजूद हैं जो कि यकीनन सहरी की तैयारी में मसरूफ़ अमल हैं। क्या पका रही हैं आप? मैं जो हूँ रोटी मैंने बना ली है, सालन गरम कर रहे हैं इस वक्त। बच्चे जो हैं आमतौर पर चाहते हैं कि पराठे वगैरह बन जाएं या सवैयाँ भी कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन आमतौर पर जो है सादा कोशिश ये होता है कि हाँ रोटी। और मौसम के हिसाब से जैसे गर्मी है तो कोई दही या लस्सी वगैरह? हाँ, लस्सी तो फरमाइश पे बनती है और बड़े जो हैं वो सब नमकीन लस्सी और बच्चे जो हैं वो मीठी। खास तौर से गर्मी के मौसम में भी खवातीन किचन में मौजूद होती हैं, लोगों की फरमाइशें पूरी कर रही होती हैं। अपनी पसंद का भी कुछ बनाती हैं या नहीं? अपनी पसंद तो बहुत मुश्किल है। एक्चुअली सबकी पसंद अब अपनी पसंद बन गई है। ये है हर एक अपने को खास नहीं, बच्चों को अगर जनाब दही वो खानी है सवैयाँ तो वो सवैयाँ अपनी पसंद बन जाती है, रोटी खानी है रोटी अपनी पसंद बन जाती है, कभी ऑमलेट है कभी कुछ है, बस सबके साथ में। बिल्कुल, सब लोगों की फरमाइशें पूरी करते करते जो अपनी पसंद होती है वो भी उसी फरमाइश में तब्दील हो जाती है और जो सबके लिए बन रहा होता है उसी को खाकर सहरी रखी जा रही होती है। और सर्दी हो या गर्मी, खवातीन ने चूँकि किचन का काम करना होता है, लिहाजा ये तमाम तर काम बहुस्न खूबी हमें सरंजाम देती हुई नजर आ रही होती हैं। जी, रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सब्जियां, फल कुछ भी सस्ता नहीं रहा। इसी हवाले से सबा बजीर की रिपोर्ट देखते हैं। शहरियों का गिला है कि बाजारों में कुछ मिले न मिले महंगाई जरूर मिल रही है। इस्लामाबाद में महंगाई का खूब जोर है। गरीब और कमजोर लोग तो सिर्फ कीमत पूछने पर ही गुजारा कर लेते हैं। सबसे पहले लीमू की सुन ले। मौसूफ ने घर जाने के लिए 300 रुपए की शर्त रख ली। 1 किलो बैंगन 80 रुपए के गुन गा रहा है तो वही तोरी 120 किलो के रेट में बंद है। मटर 120 रुपए के बदले आपके साथ मटर गश्त करने को तैयार बैठे हैं। भिंडी 120 रुपए किलो के साथ अवामी बचत के दांत खट्टे कर रही है। गोल मटोल टिंडे भी गोलमाल की तरह बिक रहे हैं। 1 किलो टिंडे के दाम 80 रुपए तक जा पहुँचे। बस टमाटरों का रेट सुनकर गाल लाल नहीं होते। टमाटर 40 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई महंगाई और महंगाई, आवाम की बस यही है दुहाई। गरीब आदमी अगर उसकी कैपेसिटी नहीं इतनी तो वो कहाँ से खरीदेगा? बाहर के कुमतों में जाके देखें, उनका कोई त्यौहार आता है, हर चीज़ सस्ती हो जाती है, जहाँ पे हर चीज़ को आग लग जाती है। नींबू मंडी रमज़ान से पहले था, जो देसी नींबू था वो 1000 रुपये दड़ी था, तो जो ये रमज़ान शुरू हुआ है तो वो 2500 रुपये दड़ी हो गया, यानी कि 1500 रुपये दड़ी के साथ उन्होंने ऊपर कर दिया। रमजान की आमद के साथ महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जी और फल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम के लिए तो बस एक ही फल बचा है, वो है सबर का फल। कैमरा मैन नफीस आराई के साथ सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। FC की जानिब से सिविल इंतजामिया और चाइनीज कंपनी MRDL के ताउन से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में राशन तकसीम किया गया। FC साउथ पंजकोर राइफल्स की जानिब से 200 घरानों पर मुश्तमिल गुरबा, मसाकीन और बेवाओं में राशन तकसीम किया गया। शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए। FC की जानिब से शहरियों को समाजी फासला बरकरार रखने की तलकीन की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। FC की जानिब से सिविल इंतजामिया और चाइनीज कंपनी MRDL के ताउन से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में राशन तकसीम किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। सिंध में पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत देने का फैसला किया गया है। किराएदारों के लिए अच्छी खबर, सिंध में घरेलू किरायों की अदायगी मौखर कर दी गई।
सिंध हुकूमत कोरोना से परेशान हाल अवाम को रिलीफ देने में फिर बाजी ले गई। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत लगी बैठक में बड़े फैसले हो गए। रिलीफ के साथ तकलीफ देने वालों के इलाज का भी फैसला। अब जो भी कोरोना फैलाने का बाइस बनेगा 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सिंध वबाई एक्ट 2014 और तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। घरेलू किरायों की अदायगी मौखर, पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत दी जाएगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनसे बिल ना लिए जाएं, और अभी तक किसी भी रेजिडेंशियल कंज्यूमर से जब से ये कोरोना की इमरजेंसी आई है तब से पैसे नहीं लिए गए। ये फैसला किया गया है कि आइंदा भी ये पैसे उनसे रिकवर नहीं किए जाएंगे। और बिजली और गैस के बिलों के हवाले से भी ये ऑर्डिनेंस में इस प्रोविज़न को डाला गया है कि हेस्को सेप्को के इलेक्ट्रिक जो है वो पैसों को चार्ज में शुरुआत खुद से शुरू करने का बड़ा फैसला। सूबाई वज़रा और मुशीर मौजूदा माशी हालात के पेश नज़र जून 2020 तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। काबीना इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर। सिग्नल तोड़ने, ओवरलोडिंग और ओवरटेकिंग पर जुर्माना 2000 करने की तजवीज़ पर स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। टिड्डी दल से मुतासरा अजला में फ़ज़ाई स्प्रे के लिए वफाकी हुकूमत से 6 एयरक्राफ्ट मुहैया करने की भी दरख्वास्त कर दी गई। आज़ाद रेडियो 24 न्यूज़ कराची में ताजरों को SOP के मुताबिक ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त दे दी गई। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि ऑनलाइन कारोबार करने में मुश्किलात का सामना है। दुकानें खोले बगैर कारोबार कैसे करें? हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदबीर के साथ 9 बजे से 3 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त के बाद ताजरों ने मार्केटों का रुख कर लिया। शहर में जैसे ही ताजरों ने दुकानें खोली तो पुलिस ने आकर बंद करा दी। इस हवाले से कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी का कहना था कि शटर बंद करके ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि ऑनलाइन कारोबार करना मुश्किल है। जब तक खरीदार प्रोडक्ट की जांच नहीं कर लेता खरीदता नहीं है। ऑनलाइन कैसे फरोख्त करेंगे, ताजरों का कहना था। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर बस इतना ही। गवर्नर का कहना है कि उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल सैयद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं उनके सेहत के हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एक ट्वीट के ज़रिए इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें कोरोना वायरस जो है उसका शिकार हो गए हैं। उनका टेस्ट मुस्बत आया है, जिसकी वजह से वो ख़ुद क्वारंटाइन में चले गए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मज़ीद अपने ट्वीट में ये कहना था कि मैं इस तमाम तर सूरत हाल से परेशान नहीं हूँ, इस वक्त भी सूबे की खिदमत के लिए तैयार हूँ। अगरचा 14 रोज़ के लिए क्वारंटाइन में गया हूँ, लेकिन तमाम तर जो सरगर्मियाँ हैं वो घर में बैठ के जारी रहेंगी। वो अपने घर में ही महदूद हो गए हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल। जबकि चंद दिनों कबल जो गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल, उन्होंने हैदराबाद का एक शाही दौरा भी किया था, जिसमें उन्होंने तमाम तर इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो एहतियाती तदबीर है उनको नहीं अपनाया था। कई उनके इर्द गिर्द लोगों को भी देखा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने मौशी सरगर्मियों की बहाली के लिए एक और बड़ा फैसला कर लिया है। सूबे भर में टेक्सटाइल और टेनरी समेत मजीद 153 फैक्ट्रीज को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सिंध हुकूमत ने मौशी सरगर्मियों की बहाली के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। सूबे भर में टेक्सटाइल और टेनरी समेत मजीद 153 फैक्ट्रीज को काम की इजाज़त दे दी गई है। फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से क्यों हटाया गया, 24 न्यूज़ ने असल कहानी मालूम कर ली। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फिरदौस आशिक अवान में तल्ख कलामी हुई। आज़म खान ने फिरदौस आशिक अवान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। साबिक मुशीर इत्तलात ने इन खबरों की तरदीद कर दी है। फिरदौस आशिक अवान को क्यों फारिग किया गया, 24 न्यूज़ ने असल कहानी मालूम कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फिरदौस आशिक अवान के दरमियान एक मुलाकात में तल्ख कलामी हुई। आज़म खान ने फिरदौस आशिक अवान पर चार्जशीट पेश की और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और जवाब में कहा कि उनके खिलाफ गलत खबरें आज़म खान के दफ्तर से फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ ख़ुसूसी लगाया है और वो इमरान खान को ही जवाब दे हैं, ना कि इनके स्टाफ को। फिरदौस आशिक अवान ने 22 अप्रैल को वज़ीर आज़म से मुलाकात में शिकवा किया कि उन्हें हटाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि अगर ऐसा फैसला किया तो वो बता देंगे।
दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान ने तमाम खबरों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देते हुए तरदीद की है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है कि टीम के किस खिलाड़ी को कौन सी फील्ड पोजीशन पर खिलाना है। हुकूमत के 18वीं तरमीम में नजरसानी के फैसले पर बिलावल भुट्टो इन एक्शन। सियासी रहनुमाओं से राबतों का आगाज कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जमहूरी कुव्वतें 18वीं आईनी तरमीम पर किसी सूरत कोई समझौता नहीं करेंगी। तफसीलात के लिए आज़ाद तोहरियों की रिपोर्ट देखते हैं। ने 18वीं तरमीम में नजरसानी का ऐलान करके नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। अपोजिशन जमातों ने आस्तीनें चढ़ा ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सियासी जमातों के बड़ों से राब्ते शुरू कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जमहूरी कुव्वतें 18वीं आईनी तरमीम पर किसी सूरत कोई समझौता नहीं करेंगी। हमने 18वीं आईनी तरमीम के जरिए दस्तूर को इसकी असल शक्ल में बहाल किया। तरमीम से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क कोरोना वायरस की वजह से संगीन हालात से गुजर रहा है। उन्होंने पीटीआई हुकूमत को मशवरा दिया कि वफाक आइन से छेड़छाड़ की बजाय सूबों की मदद करे। आजाद रेडियो 24 न्यूज कराची। भारतीय फौज की एलओसी पर खिलाफ वर्जियां जारी हैं। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने खोई रट्टा और जंद रोड सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की है, जिससे 36 साला खातून शहीद जबकि 8 साला बच्ची जख्मी हो गई है। भारत जारियत से बाज न आया। एक बार फिर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल की शहरी आबादी को निशाना बना डाला। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय बिलाश्तार फायरिंग से गांव मोहर छतर की एक खातून शहीद और 8 साला बच्ची जख्मी हो गई। उमर पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि मोदी को इक़्तिदार मिलने से हिंदुत्व दहशतगर्दी इंतहा पर पहुंच गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड बद से बदतर होता जा रहा है। कोरोना की आफत भी सिविलियन आबादी को निशाना बनाने से भारत को नहीं रोक सकी। भारतीय फौज ने 2019 में सबसे ज्यादा 3,351 मरतबा जंग बंदी मायदे की खिलाफवर्जी की, जिससे 52 अफराद शहीद और 261 जख्मी हुए। 2015 में भारत ने जंग बंदी के 248 मरतबा खिलाफवर्जियां की। भारतीय फायरिंग से 39 शहरी शहीद और 152 जख्मी हुए। 2016 में 382 मरतबा खिलाफवर्जी में 46 सिविलियन जान से गए और 150 जख्मी हुए। 2017 में 1881 मरतबा दुश्मन ने अपनी असलियत दिखाई। 2017 में बिलाश्तार फायरिंग से 53 अफराद शहीद और 256 जख्मी हुए। 2018 में एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां 3038 तक पहुँच गयी। 2018 में जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की भारतीय रवश 58 जाने ले गई। डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि जुल्म, बर्बरियत, नस्ली इम्तियाज और नफरत की मकबूजा कश्मीर में लगाई भारतीय आग अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। दुनिया कोरोना के खिलाफ मुतहद हो रही है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान हिंदुत्व और सिफरान दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। लॉकडाउन के बावजूद रमजानुल मुबारक की रौनकें बरकरार हैं। कराची में सहरी के औकात में बाजार बंद हैं, लेकिन रात गए खवातीन सहरी की तैयारियों में मसरूफ हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे समीन नवाज से। समीन नवाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए दस्तरखान इफ्तार की तरह से सहरी के लिए भी खुसूसी एहतमाम घरों में किया जा रहा होता है और चूँकि पूरे साल में एक मरतबा ये महीना आता है तो जहाँ पर खुशू खुजू से इबादत का सिलसिला जारी होता है, वहीं पर दस्तरखान की रौनकें बढ़ाने के लिए भी हमें घर में ख़वातीन सुबह शाम मसरूफ़ अमल नज़र आती हैं। इस वक्त हम बावर्ची खाने में मौजूद हैं और मेरे साथ खातून खाना मौजूद हैं जो कि यकीनन सहरी की तैयारी में मसरूफ़ अमल हैं। क्या पका रही हैं आप? मैं जो हूँ रोटी मैंने बना ली है, सालन गरम कर रहे हैं इस वक्त। बच्चे जो हैं आमतौर पर चाहते हैं कि पराठे वगैरह बन जाएं या सवैयाँ भी कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन आमतौर पे जो है सादा कोशिश ये होता है कि हाँ रोटी। और मौसम के हिसाब से जैसे गर्मी है तो कोई दही या लस्सी वगैरह? हाँ, लस्सी तो फरमाइश पे बनती है और बड़े जो हैं वो सब नमकीन लस्सी और बच्चे जो हैं वो मीठी। खास तौर से गर्मी के मौसम में भी खवातीन किचन में मौजूद होती हैं, लोगों की फरमाइशें पूरी कर रही होती हैं। अपनी पसंद का भी कुछ बनाती हैं या नहीं? अपनी पसंद तो बहुत मुश्किल है। एक्चुअली सबकी पसंद अब अपनी पसंद बन गई है। ये है हर एक अपने को खास नहीं, बच्चों को अगर जनाब दही वो खानी है सवैयाँ तो वो सवैयाँ अपनी पसंद बन जाती है। रोटी खानी है रोटी अपनी पसंद बन जाती है। कभी ऑमलेट है कभी कुछ है, बस सबके साथ में। बिल्कुल, सब लोगों की फरमाइशें पूरी करते करते जो अपनी पसंद होती है वो भी उसी फरमाइश में तब्दील हो जाती है और जो सबके लिए बन रहा होता है उसी को खाकर सहरी रखी जा रही होती है। और सर्दी हो या गर्मी, खवातीन ने चूँकि किचन का काम करना होता है, लिहाजा ये तमाम तर काम बहुस्न खूबी हमें सरंजाम देती हुई नजर आ रही होती हैं। जी, रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सब्जियां, फल कुछ भी सस्ता नहीं रहा। इसी हवाले से सबा बजीर की रिपोर्ट देखते हैं।
शहरियों का गिला है कि बाजारों में कुछ मिले न मिले महंगाई जरूर मिल रही है। इस्लामाबाद में महंगाई का खूब जोर है। गरीब और कमजोर लोग तो सिर्फ कीमत पूछने पर ही गुजारा कर लेते हैं। सबसे पहले लीमू की सुन ले। मौसूफ ने घर जाने के लिए 300 रुपए की शर्त रख ली। 1 किलो बैंगन 80 रुपए के गुन गा रहा है तो वही तोरी 120 किलो के रेट में बंद है। मटर 120 रुपए के बदले आपके साथ मटर गश्त करने को तैयार बैठे हैं। भिंडी 120 रुपए किलो के साथ अवामी बचत के दांत खट्टे कर रही है। गोल मटोल टिंडे भी गोलमाल की तरह बिक रहे हैं। 1 किलो टिंडे के दाम 80 रुपए तक जा पहुँचे। बस टमाटरों का रेट सुनकर गाल लाल नहीं होते। टमाटर 40 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई महंगाई और महंगाई, आवाम की बस यही है दुहाई। गरीब आदमी अगर उसकी कैपेसिटी नहीं इतनी तो वो कहाँ से खरीदेगा। बाहर के हुकूमतों में जाके देखें, उनका कोई त्यौहार आता है, हर चीज़ सस्ती हो जाती है, जहाँ पे हर चीज़ को आग लग जाती है। नींबू मंडी रमज़ान से पहले था, जो देसी नींबू था वो 1000 रुपये दड़ी था, तो जो ये रमज़ान शुरू हुआ है तो वो 2500 रुपये दड़ी हो गया, यानी कि 1500 रुपये दड़ी के साथ उन्होंने ऊपर कर दिया। रमजान की आमद के साथ महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जी और फल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम के लिए तो बस एक ही फल बचा है, वो है सबर का फल। कैमरामैन नफीस आराई के साथ सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। एफसी की जानिब से सिविल इंतजामिया और चाइनीज कंपनी MRDL के ताउन से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में राशन तकसीम किया गया। FC साउथ पंजकोर राइफल्स की जानिब से 200 घरानों पर मुश्तमिल गुरबा, मसाकीन और बेवाओं में राशन तकसीम किया गया। शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए। FC की जानिब से शहरियों को समाजी फासला बरकरार रखने की तलकीन की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। FC की जानिब से सिविल इंतजामिया और चाइनीज कंपनी MRDL के ताउन से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में राशन तकसीम किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। सिंध में पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत देने का फैसला किया गया है। किराएदारों के लिए अच्छी खबर, सिंध में घरेलू किरायों की अदायगी मौखर कर दी गई। सिंध हुकूमत कोरोना से परेशान हाल अवाम को रिलीफ देने में फिर बाजी ले गई। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत लगी बैठक में बड़े फैसले हो गए। रिलीफ के साथ तकलीफ देने वालों के इलाज का भी फैसला। अब जो भी कोरोना फैलाने का बाइस बनेगा 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सिंध वबाई एक्ट 2014 और तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। घरेलू किरायों की अदायगी मौखर, पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत दी जाएगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनसे बिल ना लिए जाएं और अभी तक किसी भी रेजिडेंशियल कंज्यूमर से जब से ये कोरोना की इमरजेंसी आई है तब से पैसे नहीं लिए गए। ये फैसला किया गया है कि आइंदा भी ये पैसे उनसे रिकवर नहीं किए जाएंगे। और बिजली और गैस के बिलों के हवाले से भी ये ऑर्डिनेंस में इस प्रोविज़न को डाला गया है कि हेस्को सेप्को के इलेक्ट्रिक जो है वो पैसों को चार्ज में शुरुआत खुद से शुरू करने का बड़ा फैसला। सूबाई वज़रा और मुशीर मौजूदा माशी हालात के पेश नज़र जून 2020 तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। काबीना इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर, सिग्नल तोड़ने, ओवरलोडिंग और ओवरटेकिंग पर जुर्माना 2000 करने की तजवीज़ पर स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। टिड्डी दल से मुतासरा अजला में फ़ज़ाई स्प्रे के लिए वफाकी हुकूमत से 6 एयरक्राफ्ट मुहैया करने की भी दरख्वास्त कर दी गई। आज़ाद रेडियो 24 न्यूज़ कराची में ताजरों को SOP के मुताबिक ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त दे दी गई। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि ऑनलाइन कारोबार करने में मुश्किलात का सामना है। दुकानें खोले बगैर कारोबार कैसे करें। हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदबीर के साथ 9 बजे से 3 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त के बाद ताजरों ने मार्केटों का रुख कर लिया। शहर में जैसे ही ताजरों ने दुकानें खोली तो पुलिस ने आकर बंद करा दी। इस हवाले से कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी का कहना था कि शटर बंद करके ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि ऑनलाइन कारोबार करना मुश्किल है, जब तक खरीदार प्रोडक्ट की जांच नहीं कर लेता खरीदता नहीं है। ऑनलाइन कैसे फरोख्त करेंगे, ताजरों का कहना था। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर बस इतना है।